Hello and very good evening to all the students. So students, let's begin our today's dictation, and today we are going to write about first aid. Okay, so please bring your English copy, pencil, pen, eraser, and we will start our English dictation. Okay, so let's start our English dictation. So please write it down. First aid, first aid, first aid is the first aid is the medical help. First aid is the medical help given to an injured given to an injured or sick person before doctor arrives. Full stop. Before doctor arrives. Full stop. Once again I am repeating. First aid is the medical help given to an injured or sick person before doctor arrives. Full stop. While giving first aid, yes, write it down. While giving first aid, comma, and most of you have seen first aid box. Okay, so please comment on the comment box which things are kept in first aid box. Okay, if anyone knows, then he can comment it. While giving first aid, comma, be calm and make the injured or sick or sick person be calm and make the injured or sick person comfortable. Full stop. Sick person comfortable. Full stop. Make him lie down. Make him lie down. Full stop. Make him lie down. Full stop. Do not panic. Do not panic after an accident. Do not panic after an accident. Full stop. After an accident. Full stop. Common emergencies okay, common emergencies which need first aid. Common emergencies which need first aid are minor cuts, comma, fainting, minor cuts, comma, fainting. It's fainting, not painting. Okay, so please write down fainting. Minor cuts, comma, fainting, comma, insect oblique snake bite,
insect oblique snake bite, insect oblique snake bite, and burning full stop, and burning full stop, and burning full stop, and burning full stop. Okay students, now here we have finished our English dictation, and now we will once again tally it. Okay, so please tally your dictation. First aid is the medical help given to an injured or sick person before doctor arrives, full stop. While giving first aid, comma, be calm and make the injured or sick person comfortable, full stop. Make him lie down, full stop. Do not panic after an accident, full stop. Common emergencies which need first aid are minor cuts, comma, fainting, comma, insect oblique snake bite, and burning. Okay students, now here we have finished our English dictation, and now we will proceed to write Hindi dictation. Okay, so please bring your Hindi copy. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, और हिंदी के डिक्टेशन में हम लोग एक आज बहुत ही मज़ेदार पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, रिश्वत के प्रकरण में रिश्वत के प्रकरण में रिश्वत के प्रकरण में सामान्यतः दो पक्ष लिप्त होते हैं, पूर्ण विराम। रिश्वत के प्रकरण में सामान्यतः दो पक्ष लिप्त होते हैं, पूर्ण विराम। एक वह पक्ष जो रिश्वत देता है, एक वह पक्ष जो रिश्वत देता है, और दूसरा वह जो रिश्वत लेता है, पूर्ण विराम। और हमारी कंट्री में रिश्वत लेना और देना दोनों ही क्राइम है, ठीक है। दूसरा वह जो रिश्वत लेता है, पूर्ण विराम। रिश्वत लेना व देना दोनों ही आपराधिक कृत्य माने जाते हैं। आपराधिक कृत्य माने जाते हैं, कॉमा, हाँ लिखिए, आपराधिक कृत्य माने जाते हैं, पूर्ण, कॉमा। परंतु इस संबंध में प्रायः यह विवाद की बात मानी जाती है
मानी जाती है, मानी जाती है, मानी जाती है कि रिश्वत के, कि रिश्वत के कार्य, कि रिश्वत के कार्य से संबंधित, कि रिश्वत के कार्य से संबंधित दोनों पक्षों में कौन, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कौन, हाँ लिखिए, दोनों पक्षों में कौन इस कृत्य के लिए, इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन मार्क, इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन मार्क। दोनों पक्षों में कौन इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन मार्क। और आज की लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, इस संबंध में, इस संबंध में अपना कोई, इस संबंध में अपना कोई, यस राइट इट डाउन, इस संबंध में अपना कोई निश्चित विचार, इस संबंध में अपना कोई निश्चित विचार बनाने से पहले, बनाने से पहले हमें दोनों पक्षों, हमें दोनों पक्षों का परीक्षण कर लेना चाहिए, पूर्ण विराम। दोनों पक्षों का परीक्षण कर लेना चाहिए, पूर्ण विराम। दोनों पक्षों का परीक्षण कर लेना चाहिए, पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया है और अब हम लोग एक बार इसे टैली करेंगे। ओके, तो टैली करें। रिश्वत के प्रकरण में सामान्यतः दो पक्ष लिप्त होते हैं, पूर्ण विराम। एक वह पक्ष जो रिश्वत देता है और दूसरा वह जो रिश्वत लेता है, पूर्ण विराम। रिश्वत लेना व देना दोनों ही आपराधिक कृत्य माने जाते हैं, कौमा, परंतु इस संबंध में प्रायः यह विवाद की बात मानी जाती है कि रिश्वत के कार्य से संबंधित दोनों पक्षों में कौन इस कृत्य के लिए उत्तरदायी है, क्वेश्चन मार्क। इस संबंध में अपना कोई निश्चित विचार बनाने से पहले हमें दोनों पक्षों का परीक्षण कर लेना चाहिए, पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट्स, हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश कर लिया है और हमेशा की तरह जो भी हमने बोला है वो आपको एक पीडीएफ के रूप में लास्ट में वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को टैली कर सकें और जो भी मिस्टेक्स हों उन्हें एटलीस्ट 5 टाइम्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।